See, kabaddi is a lot of fun to watch. If you haven't been to any of the matches, please, it'll be wonderful to have you as our guest tomorrow. You must see it. It's great fun to watch. It's very engaging for the viewer. So yes, the sport itself is very attractive, but at the end of the day, it's up to them. If they play well and they make it exciting, then people are going to watch it. My thing about sport, and when we start blurring the lines between sport and entertainment, is that I've always believed that you should always retain the sport. Yes, entertainment is good to make it a more attractive package, but at the end of the day, it's the sport that's going to talk. Be it in the ISL, with the various amount of celebrity owners coming in, or be it in Pro Kabaddi League, with, like they said, some of my friends coming and sitting by the sidelines and supporting the team. That is very cosmetic. At the end of the day, what they do, how they play, how exciting their play is what's going to decide your fate. And they are very exciting to watch. So yes, it is a huge challenge, and I really hope that we can overcome that, because as anything that starts so well, the challenge is to maintain it and to improve upon it. So at the end of the day, I can't do that. It'll have to be the teams and the way they play. And I think they're up for the challenge, I feel. I was there last season and covered even the finals. A question for Navneet Gautam. Last season सभी टीम ने सेम लेवल से स्टार्ट किया बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट सीजन. आपकी टीम चैंपियन हुई, तो ये बारी डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पे शुरू करोगे. तो यू थिंक डिफेंडिंग चैंपियन का एक प्रेशर रहेगा बिकॉज आपने समिट क्लैश किया, आपके पास ट्रॉफी है, तो अगेन वही लेवल पे जाना है, तो एक एडेड प्रेशर है. यू थिंक वो एक कॉन्फिडेंट वाली बात है? देखिए, कोई प्रेशर हमारे बीच में रहेगा नहीं, और मैं सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस होना गलत है. कॉन्फिडेंस हमारे मन में है कि हम जीतेंगे, और यही सोचकर हम आए हैं यहाँ पे, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक पहला हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो एंटर द सेमीफाइनल्स, उसको पूरा करना है. पूरा लीग खेलना है, सिर्फ 14 मैचेस हमें लीग के खेलने हैं, हर एक टीम के साथ में 2-2 मैचेस हैं, तो वो हमें एंटर करना है. पहला पार्ट है एंटर द सेमीफाइनल फॉर टॉप पोजीशन, एंड देन गोइंग टू फाइनल्स, वो सेकंड पार्ट रहेगा. तो ये सारी स्ट्रेटेजी हम बना के आए हैं, तो इसको पूरा करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. और कल एक मैच है, बहुत बड़ा मैच है हमारे बीच में, मुंबई और जयपुर के बीच में, तो पूरी कोशिश करेंगे अच्छा खेलने की और 100% एफर्ट देंगे. अभी अभिषेक सर ने कहा हार जीत का मुझे कोई टेंशन नहीं, तो जब बॉस को टेंशन नहीं तो हमें क्या टेंशन होगा. Abhishek, hi. Rasesh from India Today. Hi. You got a few international players here, one from Iran and Korea, and there's some other teams who got players from Pakistan. They don't get to play in Mumbai because Hussain has taken a certain position. You, as one of the franchise owners and as a celebrity, what are your views on it? Well, we actually have a Japanese player as well. His name is Takano, but his visa has just been processed, so he'll be joining us later tonight. The quest in kabaddi is to make it a world sport, and to make it a sport that is played across the globe. Obviously, I firmly believe that sports has to rise above all of this. Everybody has reasons for doing what they do, and I don't want to comment on that because that's not my place, and I don't know the circumstances under which these actions are taken. But I do believe that sports and culture should rise above all of this. Sorry, मेरा क्या? मेहनत करो and have fun. You should have fun. I want them to smile. I want them to be happy. Every Saturday पिक्चर भी जाते हैं. हेलो, बॉस से परमिशन है कि एवरी सैटरडे गोइंग टू पिक्चर. बिल्कुल आते हैं, तो खेलते भी हमारे साथ. Can we get a mic, please? Thank you. डिफरेंट कंडीशंस में कबड्डी खेलने से परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ता है? माना कि साउथ में गर्मी पड़ती है, वो ठंडे मुल्क में जाके परफॉर्मेंस दे रहे हैं कबड्डी का, तो उनका कितना क्लाइमेट कंडीशंस का क्या फर्क पड़ता है? देखिए सर, सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी कबड्डी एक इंडोर हॉल में होने लग गया है. सभी जगह एसी चलता है, सभी जगह ठंडी रहती है. लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है कि डिफरेंट कंडीशंस में खेलने के लिए हमें 2-3 दिन
वहाँ जाना पड़ता है पहले और उस माहौल में ढलना पड़ता है। जहाँ पे अभी जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है। मुंबई में थोड़ा अभी कम है, लेकिन 1 महीना पहले थोड़ा बहुत बारिश हुआ, ह्यूमिडिटी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा था। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपना जो प्रैक्टिस है उसको बहुत मेंटेन रखते हैं, और स्पेशली डाइट, हमारे जो फिजियो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, और सारी चीज़ों को स्पेशल तौर पर देखा जा सकता है। थैंक हेलो अभिषेक जी थोड़ा सा मैं बोलने वाले आदमी चेंज करना चाहता हूं और भाषा भी चेंज होगी. मेरा सवाल आहे प्रशांत, तुला आहे माझा प्रश्न. जयपूर पिंक पॅन्थर्सकडनं खेळणं किती महत्त्वाचं आहे तुझ्यासाठी? कारण एका बाजूला चॅम्पियन टीम आहे आणि दुसऱ्या बाजूला बच्चन कुटुंबीय तुमच्यासोबत असतं. भारी सवाल है, बोलो. जयपूर पिंक पॅन्थर्ससाठी खेळणं माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. कारण आत्तापर्यंत मला महाराष्ट्र ओळखत होता, पण जयपूर पिंक पॅन्थर आणि अभिषेक सरांमुळे मला पूर्ण देश आणि जग ओळखायला लागले. त्याच्यामुळे नक्कीच मी चांगलं खेळण्याचा प्रयत्न करेन आणि जयपूर पिंक पॅन्थर विजयी होईल एवढंच बोलतो. जसवीर, दूसरा सवाल आपसे. आप बहुत गुमसुम बैठे हो, लेफ्ट हैंड रेडर हो आप, लेफ्ट साइड से रेड करते हो. कितनी प्रैक्टिस की है या कुछ अलग देखने में लगा इस साल रेडिंग में? आप इस साल अलग देखने को मिलेगा आपको. हमारी बहुत प्रैक्टिस हुई है, कोच साहब ने बहुत प्रैक्टिस करवाई है हमारी, कैप्टन ने